صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب پاک محمد رسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظر پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم صلی علیہ. ذرا ایک مرتبہ اور آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم صلی علیہ. حضرات گرامی میں کچھ منٹوں میں تھوڑا سا ابتدائی مضمون عرض کر دوں. اس کے بعد حضور مفکر اسلام خطیب اعظم حضرت علامہ اعظمی کا عظیم الشان خطاب ہوگا اور انشاءاللہ صلاح ہم سب اس کو سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے تاکہ خدا کے بندے خدا تک پہنچ سکیں. جب زمین پر نبی موجود ہوں تو یہ ضروری ہے کہ ان کی سنگت اختیار کی جائے, ان سے قریب ہوا جائے, ان کی تعلیم پر عمل کیا جائے اور ان کے جیسا بنا جائے, ان کے نقوش قدم کی پیروی کی جائے. اور جب پیغمبر دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر ان کے افکار, ان کے نظریات, ان کی تعلیمات, ان کی دعوت اور ان کے مشن سے جس قدر ہو سکے ہر اعتبار سے ظاہری اور باطنی, جسمانی اور روحانی, زمانی اور مکانی, جس طرح سے بھی ہو سکے نبیوں سے قریب ہوا جائے. یہ جو بات میں نے عرض کی ہے زمانی اور مکانی, جب آپ اسلام کے نظام عبادت پر آپ غور و فکر کریں گے, اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام عبادتیں اس میں جو روح کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ہر عبادت انفرادی طور پر اکیلے ادا کی جا سکتی ہے, لیکن عبادت اپنے کمال پر اس وقت پہنچتی ہے جب انبیاء کرام سے, ان کے نائبین سے, جو انبیاء کرام کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ جائیں, جو ان کے وارث ہوں, ان کے خلیفہ ہوں, ان کے نائب ہوں, زمانی اور مکانی طور پر ان سے قریب ہوا جائے. مثلا نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن ہماری شریعت میں پابند کیا گیا کہ نماز کو ایک وقت میں پڑھا جائے, وقت کی قید, زمانی قید اور مکانی قید, اس طرح سے کہ جماعت کا ہمیں پابند کر دیا, ہم مل کر کے عبادت کریں. روزے کے اندر دیکھ لیجئے یہی روح کار فرما ہے کہ سب کو مل کر کے ایک ساتھ رمضان کے مہینے میں وقت کا پابند کر دیا اور سب مل کر کے روزہ رکھیں, تو جماعت کا پابند کر دیا. حج کے اندر بھی یہی روح کار فرما ہے کہ حج نام ہے خدا کی طرف رجوع کا, ہے نا. بندہ اپنے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے, اس چیز کا اظہار ہے حج. اور جو مراسم حج ہے اس میں جتنے بھی ارکان ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں, انبیاء کرام کے اور اہل اللہ کے معاصر ہیں, ان کی یادگاریں ہیں. ان یادگاروں پر ہمیں بھیجا جاتا ہے جہاں پر اللہ کے نبی گزرے اور حضرت بی بی ہاجرہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام. المختصر ہر عبادت میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے قریب ہو جائیں, ہم اللہ والے بن جائیں. یہی بات ہے نا, کونو ربانی جین, یہ اللہ کا مطالبہ ہے. اے لوگوں اللہ والے بن جاؤ. تھوڑا سا دوہرا دیں, اے لوگوں اللہ والے بن جاؤ, خدا والے بن جاؤ. تو ہم خدا والے کیسے بنے
रब्बानियीन तो मकसद है, और कूनू मा सादिकीन ये उसका जरिया है और वसीला है। दोस्तों बुजुर्गों, अल मुख्तसर, इस उम्मत में अहलुल्लाह के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ ये जो ताल्लुक है, हम अहलुल्लाह का अक्सर बेशतर तज़किरा करते हैं, उसकी महफिलें सजाते हैं, तो ये सिर्फ ये हमारी मोहब्बत ही का तकाजा नहीं बल्कि दीन का तकाजा है। क्या है बोलो? ये दीन का तकाजा है। इसलिए कि जो लोग अल्लाह वाले बन जाते हैं फिर उनसे करीब होना गोया खुदा से करीब होना है, कि उनके वास्ते से हम खुदा तक पहुंचते हैं। मैं एक बुजुर्ग की एक रिवायत आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, से पता चलेगा कि बुजुर्गों का मकाम क्या है, करामत किसे कहते हैं और खुदा तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है। इमाम शारानी बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, उन्होंने औलिया किराम के तज़किरे का पर मुश्तमिल एक किताब मुरत्तब फरमाई, तबक़ात जिसका नाम है, उसमें ये वाक़या मनक़ूल है कि एक साहब एक वली अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की आकर के अल्लिमनी अल कीमिया, ए अल्लाह के वली आप मुझे कीमिया सिखा दीजिए। धात को एक सनअतगरी और फन के साथ सोने पे तब्दील करना, जिसको फन कीमिया कहते हैं। तांबे को सोने में तब्दील कर देना, यहां तक कि लोहे को सोने में तब्दील कर देना। अल्लिमनी अल कीमिया, मैं चाहता हूं कि आप नजर डालें, मुझे वो फन सिखा दें, मैं कीमिया बनाना सीख जाऊं। आपने फरमाया ठीक है, आप कीमिया का फन सीखना चाहते हैं, आप 1 साल तक मेरे यहां हाजिरी दें, यहां पर मौजूद रहें। जब 1 साल तुम यहां पर रहोगे उसके बाद मैं आपको कीमिया सिखाऊंगा, और शर्त यह है कि जितना अरसा तुम यहां रहो तहारत के साथ रहो, बावुजू। जब भी बेवुजू हो जाओ फौरन वुजू कर लेना। ये शर्त है कि मेरी महफिल में पाकी के साथ, तहारत के साथ बावुजू हाजिर रहना। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, वक्त गुजरता गया, ये इंतजार करते रहे कि कब वो बुजुर्ग मुझे याद करें, मुझे फन कीमिया सिखा दें। यहां तक के होते होते 11वां 12वां महीना आ गया, इनका इस तरह बढ़ता गया। फिर आखिर साल पूरा होने से 1 दिन पहले ये साहब फिर बुजुर्गों के पास तशरीफ ले गए। कि हुजूर आपने फरमाया था कि 1 साल में मैं तुम्हें कीमिया सिखा दूंगा, कल साल पूरा होने वाला है और आपने अभी तक तो सिखाया नहीं, कुछ बताया ही नहीं। उस बुजुर्ग ने कहा गदन तुक़ज़ा हाजतुका, कल तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी, कल हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, तुम कीमिया के माहिर बन जाओगे। इनको कुछ ढारस बंदी की चलो, अब तक तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फरमाते हैं मैंने पूरा साल इंतजार किया, 1 दिन और सही। दूसरे दिन जब वो साहब उस अल्लाह के वली की बारगाह में आए, हाजिर हुए, अल्लाह के वली ने फरमाया पहले जाओ ये डोल उठाओ और कुएं से पानी भर लाओ। कुएं से पानी भर लाओ। उन्होंने तामील की, डोल लेकर के कुएं पर गए, डोल कुएं में डाली और जब वापस खींचा तो क्या देखते हैं कि पूरी डोल सोने से भरी हुई है, पानी की जगह सोना है। वो हैरान हो गए, दंग हो गए, लेकर के बुजुर्ग की बारगाह में आए। बुजुर्ग ने कहा कि अब तुम क्या चाहते हो, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम फन कीमिया सीखने के लिए आए थे, अब तुम्हारा क्या ख्याल है, अब क्या चाहते हो? उस नौ वारिद ने, उस आने वाले ने, कीमिया की ख्वाहिश रखने वाले ने अर्ज की कि हुजूर मुझे दुनिया की दौलत में से किसी एक जर्रे की दिल के अंदर अब ख्वाहिश नहीं रह गई है। आपकी महफिल में पूरा 1 साल में जो हाजिर रहा, यहां पर आपकी महफिल में बावजू तहारत के साथ हाजिरी देता रहा, आपकी जिंदगी देखता रहा, आपके अहवाल का मुशाहिदा करता रहा, उसका यह असर हुआ है कि आप मेरे दिल में दुनिया के किसी एक जर्रे की लालच और ख्वाहिश नहीं रह गई है। बुजुर्ग ने फरमाया इज़हब इला बलदिका, अब तुम अपने शहर में वापस जाओ, इसलिए कि आना सिरता कुल्ल काल कीमिया, अब तुम खुद कीमिया बन चुके हो। तुम्हारे दिल से दुनिया निकल गई, तुम्हारे दिल से लालच निकल गई, ख्वाहिश निकल गई,
तुम्हारे दिल से दौलत निकल गई, अब तुम खुद कीमिया बन चुके हो। तुम कीमिया सीखने के लिए आए थे, जब दुनिया से पाक हो गए तुम्हारा जाहिर और बातिन। यहाँ पर वजह यह है कि उस बुजुर्ग ने जाहिरी तहारत के लिए पाबंद किया था ना, कि सिर्फ बावजू रहना। उनका मकसद और मुराद यही था कि तुम हर एतबार से अपने आप को साफ करो, सुथरा करो, अपने आप को ताहिर बनाओ, जाहिर और बातिन के एतबार से, है ना। तो बुजुर्गान दीन की मजलिसें और उनकी महफिलें इतनी पुरअसर होती हैं, इतनी मुअस्सिर होती हैं और इतनी कारआमद होती हैं कि उनकी महफिलों में बैठने वाले, और मैं यहाँ पर एक अर्ज करूं, आप कहोगे कि वली अल्लाह हाजिर हो तो हम भी चले जाएं, हम भी कीमिया सीख लें, हम भी पाकीज़ा बन जाएं। तो याद रखो, जिस तरह से वली जिंदा हो, मैंने वो तमहीद अर्ज की थी कि नबी जिंदा हो तो नबी से करीब होना जरूरी, वली जिंदा हो तो वलियों की बारगाह में और उनकी महफिलों के अंदर ये हमें फैज मिलता है, असर मिलता है कि हमारा जाहिर और बातिन सुथरा हो जाता है। और जब वो ना हो तो फिर हम क्या करें, उसके लिए यही महफिलें हैं। ये जो हम हर महीना 11वीं करते हैं, ये जो हम छठी मनाते हैं, ये उनकी याद और उनके तज़किरे के लिए और उनके जिक्र के लिए जगह जगह पर महफिलें करते हैं। ये इसीलिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मेरा आखिरी जुमला है, बहुत बड़ा नाम, मुफक्किरीने इस्लाम, अइम्मे दीन में एक बहुत बड़े दानिश्वर, जिनके इल्म पर, जिनकी तहरीर पर, जिनके कलम पर एतमाद किया जाता है। शिबली नुमानी ने यहां तक किया कि ये कुदरत को अपनी नैरंगियों का तमाशा दिखाना मकसूद था कि गजाली और राजी के बाद शाह वलीउल्लाह जैसा शख्स हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ। वो शाह वलीउल्लाह, इनको गैर भी मानते हैं, बहुत उनको मानते हैं। उन्होंने हम आज के अंदर लिखा कि तहारत के लिए चंद तरीके हैं। मसलन जाहिरी तहारत के लिए गुस्ल करना जरूरी, आदमी नापाक हो जाए तो गुस्ल करना जरूरी। इसी तरह से ज़कात को गिना है, तिलावत कुरान को गिना है। ये जो आम चीजें आप जानते मानते हैं, सुनते हैं कि खुदा के जिक्र से पाकी हासिल होती है ना, ये चीजें गिनाने के बाद आपने दो चीजें और गिनवाई। आपने फरमाया कि तज़कारे औलिया, औलिया किराम के अज़कार, उनके क़िसस, उनके वाक़यात सुनना, सुनाना, उनकी महफिलें मुनक़िद करना, इससे भी तहारत हासिल होती है। और दूसरी चीज आपने फरमाई कि अगर वली जिंदा मयसर ना हो तो फिर उनकी बारगाहों में हाजिर होना, मज़ारात पर हाजिरी, इससे भी तहारत हासिल होती है। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए।